how long does it take to get over a divorce? There is no time limit. What is there a time limit for? Just like some people take longer to learn for a test, some people take a short time to learn for a test, some people study really hard for a test, some people don't study at all and still ace a test. उसी तरह से this is divorce. You take your time. You determine how much time you need. Hi guys, I'm Amna Kardar and today I'm going to talk about how long does it take to get over a divorce. Welcome to my YouTube channel. If you haven't subscribed, please subscribe it. I'm making a whole series about going through a divorce as a woman in Pakistan. So today I'm going to talk about how long does it take to get over a divorce. Why does there have to be a time limit? Please tell me. किसने टाइम डिराइव करना है कि जी 1 महीने में यू शुड बी ओवर इट और 4 महीने में यू शुड बी ओवर इट और 6 महीने में यू शुड बी ओवर इट. Take your time. Your body will tell you how long it takes. Your mind will tell you how long it takes. Also, it depends आपकी attachment कैसी थी, आपका trauma कितना ज़्यादा है, आपके साल कितने ज़्यादा थे, आपके बच्चे हैं कि नहीं हैं, आपकी family में आपकी शादी हुई थी नहीं. There are a lot of variables that depend on how you get through a divorce and how long it's gonna take. But the good news is that you do get over it. And if you're somebody who has not found yourself to be someone who is getting over their divorce and it's been years and years, there is really something that you need to get up and do. Dekho, nothing changes if nothing changes. At the end of the day, your parents can be there for you, your friends can be there for you, your siblings can be there for you, everyone can be there for you, but काम आपने ही करना है. This is something that you have to work on. You are the one who can only work on yourself. और mostly मैंने क्या देखा है कि हम सबसे बड़ी दीवार होते हैं अपने आप को आगे जाने से. हम लोगों को गिल्ट होता है कि इफ़ वी मूव ऑन तो पता नहीं इसका मतलब है कि हम शादी में सिंसियर नहीं थे. अगर हमने जो है इसके बारे में सोचना छोड़ दिया तो पता नहीं मेरे बच्चे सोचेंगे कि शायद मैं जान के ये करना चाहती थी. बहुत सारे रीजंस होते हैं. और अगर आप बैठ के पूरा दिन सिर्फ स्टॉकिंग करते रहेंगे, जो कि मैंने इतने लोगों को करते हुए देखा है कि ओहो वो तो अब एक और लड़की के साथ है, वो तो शादी करने लगा है, उसका तो काम इतना अच्छा जा रहा है, उसका तो फलाना इतना अच्छा हो रहा है. लिसन, वी आर ऑल इंडिविजुअल्स. एवरीबडी हैज़ देयर ओन पाथ. समटाइम्स उस वक्त हमें लग रहा होता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ ग्रेट फॉर मी, बट आप पर्सपेक्टिव क्यों नहीं चेंज कर लेते हैं? चेंज योर पर्सपेक्टिव. इफ़ यू फील कि अच्छा मेरी तलाक हो गई है और बस अब तो मुझे ज़िंदगी में कोई नहीं मिलेगा और अब तो सब मुझे इस तरह जजमेंट की नज़र से देख रहे हैं, चेंज द पर्सपेक्टिव. यू गॉट अ सेकेंड चांस एट लाइफ. You have a second chance at life to do something that you always wanted to do. अगर आप एक ऐसे इंसान हैं who has no passion, then you're a dead person. हर इंसान का एक पैशन होता है. वी आर ऑल पैशन ड्रिवन पीपल. कोई ऐसी चीज़ करो जो पहले करने का टाइम नहीं मिला. कोई ऐसी चीज़ करो जो पहले करने का मौका नहीं मिला. इतना कुछ हो सकता है. इफ़ यू फील के 6 महीने, साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए एंड यू आर स्टिल obsessing over what happened 2 years ago and what that guy is doing and what you went through and what all happened, then you know what, it is too long. It should not take that long. Ideally psychologists और mental health के जो professionals होते हैं वो कहते हैं कि you need at least 1 year, minimum 1 year to heal and find yourself again, because obviously शादी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें compromises होते हैं, adjustments होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. पूरी ज़िंदगी आपने एक फैमिली में गुजारी होती है and all of a sudden you're going and living with another family and their values and their situation and their house. तो बहुत सारी चीज़ें हम adjust करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. कभी हम फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर और चीज़ें आ जाती हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बैक एंड पे ले जाते हैं. फर्स्ट फाइंड टाइम टू फाइंड योर सेल्फ अगेन. अपने आप को फिर से तलाश करो. लेकिन ये सब कुछ तब हो सकता है जब फ्रेम ऑफ माइंड यहाँ से पॉजिटिव हो. जो इनिशियल टाइम होता है, हम क्या कोशिश करते हैं और मुझे लगता है जो गलती हम क्या करती हैं स्पेशली ख़वातीन, वो जो पहले 3 महीने होते हैं, जो प्रोसेस के 3 महीने होते हैं, वो बहुत मुश्किल 3 महीने होते हैं. उनमें गुस्सा चढ़े चढ़ा लो, रिजेंट करना है कर लो, गालियाँ देनी है दे दो, रोना है रो लो, बिस्तर से नहीं निकलना ना निकलो, जो दिल करे करो. अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट 6 months टू डू एंड रिएक्ट द वे यू वॉन्ट टू. बट आफ्टर दैट यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ. अगर 1 साल से ज़्यादा 2 साल से आप एक चीज़ में फंसे हुए हो तो फिर आपका अपना कसूर है, आपने खुद अपने आप को फंसाया हुआ है. बिकॉज 1 साल के बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन हेल्दियर थिंग्स एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. अगर आपको लग रहा है एट एनी पॉइंट कि आपसे खुद नहीं हो रहा, गेट हेल्प, गेट प्रोफेशनल हेल्प.
ये लोग जो बताते हैं कि नहीं जी ये क्या है, सिर्फ पागल लोग जाते हैं। डू यू नो दैट इन द वेस्ट इट इज़ नोन दैट हेल्दी पीपल सीक हेल्प। सिर्फ जो हेल्दी लोग होते हैं दे गो लुकिंग फॉर हेल्प, बिकॉज अगर एक डिवोर्स हुई है उसमें अगर दूसरी पार्टी का ज़्यादा कसूर है भी तो कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू एक्सेप्ट कि हमने क्या गलती की थी और हम उस गलती को कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि आइंदा जाके वो गलतियाँ ना हों। एंड वाइल यू आर लर्निंग अबाउट दोज यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। 20s में अगर शादी हो गई थी, यू नो 30s में जाके मुझे ये लगता है कि नाउ दैट आई एम इन माई 40s आई एम फाइनली फाइंडिंग आउट हु आई एक्चुअली एम एंड वॉट आई एक्चुअली रियली लाइक। और ये बात नहीं है कि मेरे स्ट्रगल्स नहीं है। आई हैव अ डॉटर, मुझे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती, मैं उसको खुद पालती हूँ। मेरी कोई स्टेबल 9 to 5 की जॉब नहीं है जो मुझे पता है हर महीने के एंड में 5 लाख रुपए आ जाने हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हर 2 साल के बाद मैं घर बदलती हूँ और अब मैं आके एट 43 अपनी पूरी लाइफ चेंज कर रही हूँ। एंड आई एम गोइंग फॉर माई मास्टर्स। पढ़ाई की कोई एज नहीं होती, करियर चेंज करने की कोई एज नहीं होती, ट्राइंग समथिंग न्यू की कोई एज नहीं होती। अगर आपको कोई ये बताता है ना कि अब तुमने क्या करना है, अब तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो तुम 30 साल की होगी हो, दैट्स रॉन्ग। 40 की होगी, 50, यू कैन री स्टार्ट योर लाइफ। अल्लाह ताला ने हमारे में एज ह्यूमन बींग्स ये कैपेसिटी डाली है दैट वी कैन री स्टार्ट आवर लाइफ्स एट एनी पॉइंट। आप पीछे जाके हमारे प्रॉफिट्स की ज़िंदगियों से देखें, उनसे एग्जाम्पल्स लें। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप गिरो, आप अपने आप को उठा सकते हो। यही तो कमाल चीज़ है अशरफुल मखलूक़ात की। तो आप प्लीज़, there is no certain time to get over a divorce, but at some point or the other you do need to get over the divorce. You need to stop pitying yourself, you need to stop victimizing yourself, you need to stop thinking कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, you need to stop thinking कि ये आप ही एक अकेले हैं इसमें से जो गुजर रहे हैं। नहीं, फाइंड वुमेन। हाँ, आई अंडरस्टैंड बहुत सारी दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बहुत सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। फाइंड पीपल, दुनिया में हर किस्म के लोग हैं। फाइंड वुमेन, make friends who you have something in common with. Find women who've been through divorce. Find women, get inspiration. जाए, YouTube भरा हुआ है, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स भरे हुए हैं, जाके उनकी स्टोरीज देखें, किस तरह लोग गिर के खड़े हुए हैं, उनकी स्टोरीज सुने, इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुने। हम क्या करते हैं, पूरा दिन वही ड्रामे घिसे पिटी चीज़ें देखते रहते हैं, पूरा दिन स्टॉक करते रहते हैं, अंदर ही अंदर बिटर होते जाते हैं। जब आप अंदर ही अंदर बिटर हो गए ना, ट्रस्ट मी, उससे ज़िंदगी में किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, सवाए आपकी ज़िंदगी को फ़र्क पड़ रहा है और किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोग अपनी ज़िंदगी में आगे चल रहे हैं, सब वो कर रहे हैं जो उन्होंने करना है। हर एक के घर में जो है, जो जिसने आना है, जिसने जाना है, वो हो रहा है। सिर्फ आप अकेले बैठे हुए हैं एंड यू आर जस्ट बिकमिंग रिजेंटफुल एंड बिटर, और उससे सिर्फ आपकी ज़िंदगी या इफ़ यू हैव किड्स उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। सो प्लीज़ डू टेक टाइम। हम क्या करते हैं इनिशियली ना, पहले 3-4 महीने में कोशिश करते हैं सारा कुछ कर लें, इसी में हम यूँ भी कर लेंगे, काम भी कर लेंगे, फलां भी कर लेंगे, फ्लू भी कर लेंगे। और हम क्या करते हैं, ऑलरेडी जो हमारी बॉडी ट्रॉमा में से गुजरी और टायर्ड होती है, हम उसको और टायर्ड कर लेते हैं। और जब टाइम आता है एक्चुअली कुछ करने का, तब हम गिव अप करके बर्नआउट होकर टोटली बैठ जाते हैं। ये मत करें। शुरू के 6 महीने अब से कुछ एक्सपेक्ट ना करें अपने आप से। अगर आप उठ के नहा के बाल भी ब्रश कर रहे हैं तो पैट योर सेल्फ एट द बैक, बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने आप से गुस्सा ना करें, अपने आप को वो टाइम दें हील करने का, बिकॉज आई अंडरस्टैंड लोगों को फिजिकलिटी चीज़ों की समझ आती है। when we lose somebody and somebody dies, they say there are 7 stages of grief. Just like that, when you go through a divorce, it's not just the person that you are divorcing. It is your whole life. It is a lot of dreams. It is that life that you thought that you were going to grow old in. And these are a lot of things that you are divorcing with just that person. आपकी पूरी ज़िंदगी का नक्शा बदल जाता है. So allow yourself to grieve it. Allow yourself. It is like the death of somebody. मैं बार बार हमेशा ये कहती हूँ. But be compassionate. दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें. देखें, लोग आएंगे, इवन जब फौतगी होती है, कोई चला जाता है, तो लोग आते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता. व्हेन डज इट रियली हिट यू इज़ व्हेन एवरीबडी गोज़ बैक टू देयर लाइव्स एंड आप अकेले रह जाते हैं. उसी तरह से डिवोर्स में भी होता है. इनिशियली आपके दोस्त भी आएंगे, दे विल कीप अ चेक ऑन यू, फैमिली भी आएगी, सब कुछ होगा, बट आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएंगे. अगर आप अपने लिए कोई तरीका या कोई रास्ता नहीं निकालोगे अपने आप को बिज़ी रखने में, मैं ये नहीं कह रही ज़बरदस्ती का बिज़ी रखो, कोई कुकिंग ही सीख लो, चलो मैं कहती हूँ एक्सरसाइज शुरू कर दो,
सिर्फ हवा में जाके बैठ जाओ, सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा निकालो अपनी उस रूटीन में से। अगर आपको लग रहा है कि अब साल से ज़्यादा हो गया और मैं इस रूटीन से नहीं निकल सक रही, वरना यू गोइंग टू गो इनटू डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन इज़ अ वेरी रियल थिंग। वंस यू गो इनटू डिप्रेशन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट। और अगर आपके बच्चे हैं देन ऑफ कोर्स यू नीड टू पुल योर सेल्फ टुगेदर फास्टर, बिकॉज यू नीड टू डू इट फॉर योर किड्स। The good news is there will be a time when you'll be completely healed. Your friends will be back with you, your life will be back with you, your work will be back with you. और अपने आप को रीइन्वेंट करने का कोई टाइम नहीं होता। मैंने स्टार्ट किया था, मैं फैशन डिज़ाइनिंग करती थी, वो मैंने जब मेरी पहली डिवोर्स हुई ख़त्म की, मैंने टीवी ज्वाइन कर लिया बिकॉज आई रियलाइज़ कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के इसके अंदर। टीवी में क्या है, मुझे टाइम देना पड़ेगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे। मैंने टीवी में अपने आप को बिजी कर लिया, मैंने रेड कार्पेट्स करने शुरू कर दिए, एनीथिंग दैट वाज सस्टेनिंग व्हाट आई वांटेड टू डू। और मुझे कोई फाइनेंशियल हेल्प मेरे एक्स इन लॉ से नहीं मिलती थी, तो मुझे अपनी बेटी को भी साथ साथ पालना था। इनिशियली मैं 9 महीने अपने पेरेंट्स के घर रही ताकि आई कैन सेव सम मनी और मुझे रेंट शेंट ये वो ना देना पड़े। एंड उसके बाद आई गॉट माई ओन प्लेस। सेकेंड टाइम राउंड जो है, फिर उसके बाद टीवी के बाद मैंने टीवी छोड़ दिया। जब मेरी दूसरी शादी हुई, जब मैंने टीवी छोड़ दिया और बाकी चीज़ें की, फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ। फिर मैंने ज्वेलरी का बिजनेस अपना, क्योंकि मैंने उसमें कोर्सेज किए हुए थे, वो करना शुरू किया। उसके बाद मैंने मेकअप सिखाना शुरू किया, अब मैं मेकअप सिखाती हूँ। सो देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू कांट री इन्वेंट योर सेल्फ, यू एब्सोल्युटली कैन। अब मुझे लगता है कि आई एम एक्चुअली डूइंग समथिंग दैट आई एम पैशनेट अबाउट बिकॉज आई ट्राइड एवरीथिंग। अगर आप कुछ ट्राई नहीं करोगे और वेट करोगे कि कोई आपको आके बचाएगा, तो वो कभी नहीं होगा। बट आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन डू इट, यू विल डू इट, यू आर स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ अस, बट अल्लाह ताला ने आपको ये स्ट्रेंथ दी है दैट यू कैन गेट पास्ट इट।